روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں مہنگائی کا۔ ملتان میں لکڑی کی قیمتوں کو ہی آگ لگ گئی۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ تاجر اور شہری پریشان ہیں۔ فرنیچر کی لکڑی بھی پہنچ سے کوسوں دور ہو گئی ہے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں سہیب گرمانی۔ ملتان میں لکڑیاں مہنگی ہو گئیں۔ جلانے والی لکڑی کی قیمت 300 روپے فی من سے بڑھ کر 500 روپے فی من ہو گئی۔ لکڑی کی قیمتوں میں اضافے پر تاجروں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہتے ہیں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ حکومت گیس کی لوڈ شیڈنگ کنٹرول کر رہی ہے، نہ ہی مہنگائی۔ اس لیے مہنگی ہو رہی ہے، لکڑی کم آ رہی ہے، چوری زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ محکمے جنگلات والے چوری کر کے بھیج رہے ہیں، ریٹ زیادہ لے رہے ہیں، کنزیومر زیادہ ہے، کنزیوم زیادہ ہو رہی، گیس ہے نہیں، اس وجہ سے لکڑی کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے۔ پٹرول ہے نہیں، گیس ہے نہیں، بجلی ہے نہیں، اور خدا کا نام شاہ محمد قریشی اپنے گھر آرام نہ بیٹھ جا، ہمارے پاس اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافے پر لکڑ منڈی کے تاجر بے حال ہو گئے۔ کہتے ہیں جنگلات سے چوری کے باعث بھی لکڑی مہنگی ہو رہی ہے۔ فرنیچر میں استعمال ہونے والی 900 روپے میں فروخت ہونے والی فرنیچر کی لکڑی 1300 سے 1500 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ فرنیچر کا مال یہ تو جب ضرورت پڑتی ہے انسان کو سالوں بعد، تو یہ جلاؤ ہے، یہ تو ہر روز ایک دن میں 3 ٹائم چاہیے۔ یہ جو لکڑی ہمارے پاس آتی تھی 250 روپے 300 روپے، وہ آج 450 500 روپے گیلا مال مل رہا ہے۔ اس کو پھر جلاؤ کرو، تو بہت معاملات آگے پیچھے ہو چکے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو گئے۔ لکڑی کی قیمتیں بڑھنے سے فرنیچر بھی مہنگا ہو گیا۔ تاجروں کا کہنا تھا حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ سہیب گرمانی، ملتان۔ ڈی جی خان میں سردی بڑھتے ہی سوئی گیس غائب ہو گئی۔ شہریوں نے چولہا گرم رکھنے کے لیے لکڑیاں خریدنا شروع کر دی ہیں۔ خشک لکڑی کی قیمت 100 سے 800 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ آشری شفاق کی رپورٹ۔ سردی میں اضافہ ہوتے ہی ڈیرہ غازی خان شہر کے علاقوں سے سوئی گیس غائب، خشک لکڑی کی مانگ بڑھ گئی۔ شہریوں نے لکڑیاں خریدنے کے لیے آروں کا رخ کر لیا۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری مہنگائی کا رونا روتے رہے۔ لکڑ مہنگی ہے، بالکل خریداری مل نہیں رہی۔ ابھی یہ خرید کر رہے ہیں 450-500 روپے خود، اس کے اوپر 200-250 کا خرچہ ہے، 100 روپے یونٹ ہے۔ اب مزدوری خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، ہم بھی ملازم ہیں، ہماری بھی مزدوری اوکھ نکلتی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سوئی گیس پورا دن غائب رہتی ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ رہی صحیح کسر مہنگی لکڑیوں نے پوری کر دی۔ مارکیٹ میں خشک لکڑی 800 روپے فی من ہو گئی۔ گیس ہے نہیں، لکڑ بہت مہنگی ہے سر، 800 بھی بکتی ہے، 700 روپے بھی بکتی ہے، لکڑ بہت مہنگی ہے سر۔ شہریوں نے حکومت سے سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عبد القادر کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ حکومت کی ناقص پالیسیاں کسانوں کو لے ڈوبیں۔ چشتیہ میں بھی کھاد بحران شدت اختیار کر گیا۔ کھاد نہ ملنے پر کسانوں نے بہاول نگر روڈ پر احتجاج کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد ہاشمی۔ تنگ آمد بدجنگ آمد، چشتیہ کے کاشتکار یوریا کھاد نہ ملنے پر سڑکوں پر آ گئے۔ بہاول نگر روڈ کو بلاک کر کے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ جس دن غلہ منڈی کو چھٹی ہوتی ہے اس دن بلیک کھاد ملتی ہے، آگے پیچھے بحران آ جاتا ہے۔ جب چھٹی ہوتی تب بحران نہیں ہوتا۔ ٹرالا آتے ہیں 100 بوری دیتے ہیں ذمہ داروں کو، اس کے علاوہ ایک بوری بھی نہیں دیتے۔ پھر کسانوں کا کہنا تھا کہ کھاد نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل تباہ ہو رہی ہے۔ ڈیلر رات کو بلیک میں فروخت کرتے ہیں جبکہ سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں۔ یہاں بالکل کھاد نہیں مل رہی، صبح سے شام تک ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ کھاد سرکاری نرخ پر بالکل نہیں ملتی۔ یہاں بلیک میں رات کو 2500 کے حساب سے ہمیں رات کو کھاد ملتی ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ کھاد کی عدم دستیابی سے پیداوار کم ہو جائے گی۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ روہی کی خبر پر اسسٹنٹ کمشنر غلام مرتضیٰ نے فوری ایکشن لیا اور سرکاری نرخ پر کھاد کی فراہمی شروع کرا دی۔ گوارا 1530 اور یوریا 1700 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ زاہد حسین ہاشمی، روہی نیوز، چشتیاں۔ ملتان انتظامیہ کے نہلی نوابپور روڈ پر ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں۔ پریشان حال تاجروں نے ان ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملتان شہر کے نوابپور روڈ پر ترقیاتی منصوبے جاری ہیں، لیکن کام میں سست روی کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے تاجر برادری پریشان ہے۔ جب کاروبار ہوگا تو کام ہوگا، جب روڈ کی جب صفائی نہیں ہوگی، جب دیکھ رہے گندگی سے روڈ بھرا پڑا ہے۔ اب جو دکاندار، ہر دکاندار، میں کیوں نہیں، میں بھی کام سے چھٹی کر کے بیٹھا ہوں گھر میں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ 1 سال سے کام مکمل نہیں کیا گیا، دکانیں بند ہیں، اس سڑک پر کوئی خریدار نہیں آتا۔ بھائی جان کاروبار بالکل تباہ ہوئے پڑے ہیں۔ اس روڈ پہ یہ مین چوک کی جگہ ہے، اس سائیڈ کا تو پہلے ہی کاروبار ختم ہے۔ یہاں سے 8 نمبر تک 2 کلومیٹر تک
इस रोड को यहाँ फटने का सर वहाँ तक है इसका। ताजिरों ने इंतजामिया से काम जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया ताकि वो भी अपनी दुकानें खोल सकें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बहावलनगर इंतजामिया के नहली मकबूल पार्क से हाफसाबाद और नई कॉलोनी जाने वाली मेन रोड टूट फूट का शिकार है। जाबजा गड़े हादसा का बायस बनने लगे हैं। सीवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाका परेशान है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बहावलनगर शहर की सड़कों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मकबूल पार्क से हाफिजाबाद और नई आबादी जाने वाली मेन रोड टूट फूट का शिकार। 20 साल कबल रोड तामीर की गई, दोबारा मरम्मत नहीं हो सकी, जिसका बायस सड़क में जगह जगह गड़े पड़ गए हैं। रोहित से गुफ्तगू में शहरियों का कहना था कि रोड हाफिजाबाद, नई आबादी, फोर्डवा, कुरैश कॉलोनी और दीगर इलाकों को जाती है। खस्ता हाल सड़क होने से मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से रोड की असर नौ तामीर कराने का मुतालबा किया। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया के नहली गटरों का पानी कदीमी कब्रिस्तान पीर पराठे शाह की कब्रों को नुकसान पहुंचाने लगा। इलाका मकीनों का एहतजाज, कहते हैं किसी ने अब तक तवज्जो नहीं दी। अपनी मददाब के तहत सीवरेज सिस्टम ठीक कर रहे हैं। आमिर डोगर की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ में नाकी सीवरेज सिस्टम से शहरी परेशान। गटरों का पानी कदीमी कब्रिस्तान पीर पराठे शाह की कब्रों को नुकसान पहुंचाने लगा। इलाका मकीनों का कहना था कि गटर उबल पड़े। अपनी मदद आपके तहत सीवरेज सिस्टम ठीक कर रहे हैं। सारी कब्रें मस्मार हुई पड़ी हैं। यह तकरीबन कोई सीवरेज का निज़ाम 15-20 सालों से, जैसे हमारे काउंसलर साहब ने कहा है, चलता आ रहा है। और अब तो इस तरह बदनस्मी और ये इस तरह ज्यादा फैल चुका है कि ये कंट्रोल से बाहर है। शहरियों का कहना था कि बल्दियाती निजाम की बहाली के बाद भी सफाई की नाकी सूरत हाल है। गटरों के पानी के बायस दरबार पर आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। ये सारी कब्रें पीछे से मस्मार हुई पड़ी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नाला रोड बनवाने का वो कर दिया है, हमें ऑर्डर कर दिया कि रोड बनाए, लेकिन रोड का हमारा इशू नहीं था, हमारा नाला चाहिए था जो सवरी वहाँ पे जाके गणेश नाले में गिरे। इलाका मकीनों का कहना था कि कई बार इंतजामिया को दरख्वास्तें दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। गंदे पानी के बायस बीमारियां फैल रही हैं। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान इंतजामिया के नहली म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी में वीरानियों के डेरे हैं। फर्नीचर टूट फूट का शिकार है। इल्म का खजाना दीमक की नजर हो गया है। अब मुताले के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। लाइब्रेरी को असल हालत में बहाल करने का मुतालबा किया गया है। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की गफलत के बायस मुल्तान की म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी खस्ता हाली का शिकार हो गई। लाइब्रेरी के बाहर पड़ी सैकड़ों किताबें धूल मट्टी की नजर होकर रद्दी बन गईं, जबकि कुर्सियां, मेज, अलमारियां और दीगर फर्नीचर टूट फूट का शिकार है। बहुत सारी किताबें जो हैं वो अब नहीं मिलती, अब तलाश करते रहते हैं, लेकिन वो काम की जो किताबें हैं वो पता नहीं कहाँ हैं या गुम हो गई हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि ये अब फर्ज किसका फर्ज बनता है, हुकूमत खुद ख्याल करे। शीशे टूटने के बायस अलमारियों को मुरम्मत करवाने की बजाय बाहर फेंक दिया गया है, जबकि बेशतर कीमती किताबों को देखभाल न होने की वजह से दीमक खा गई है। लाइब्रेरी की हालत जार के बायस मुताले के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। जिस तरह फर्नीचर पड़ा हुआ है इस जगह पे, तो ये काफी पुराना हो गया है, ठीक है, और इस जगह पर बैठकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि कदीम लाइब्रेरी को जल्द इसकी असल हालत में बहाल किया जाए। लाइब्रेरी के बाहर पड़ा टूटा फूटा फर्नीचर और दीमक ज़दा सैकड़ों किताबें इंतजामिया की गफलत का सबूत पेश कर रही हैं। शहरियों का मुतालबा है कि लाइब्रेरी की खस्ता हाली को बेहतर किया जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। महकमा आसार कदीमा की नहली मुल्तान में तारीखी विरसे की बहाली के फैसले पर अमल नहीं हो सका। आर्कियोलॉजिकल साइट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तारीखी मकामात पर अमला भी तैनात नहीं हो सका। मुल्तान में तारीखी मकामात के इर्द गिर्द तजावुज़ात के खात्मे, उनकी हिफाजत के लिए कई माह पहले अमला तैनात करने का ऐलान किया गया था, मगर अभी तक किसी भी तारीखी मकाम पर अमला तैनात नहीं हो सका। तारीखी विरसे की बहाली के लिए कदीम मकामात की लिस्ट भी तैयार नहीं की जा सकी। तारीखी विरसे की बहाली और तजावुज़ात के खात्मे के फैसले पर भी अमल नहीं हो सका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कारी वार, कहते हैं मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। हमें रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्तान का दौरा किया। रोहित से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जनूबी पंजाब के किसान यूरिया खाद के लिए लंबी लाइनों में लगे हैं। जनूबी पंजाब का किसान भी परेशान है और पूरा मुल्क परेशान है। लेकिन आज मैं मुल्तान हूँ तो हैरानगी है कि ये एक ज़री इलाका है और ज़री इलाके में किसान कतारों में खड़े हैं यूरिया की एक बोरी के लिए,
और सरकारी रेट कुछ और होता है, ब्लैक पे कुछ और होता है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत सिर्फ कागजों में है। वज़ीर आज़म कहते हैं इन्हें डॉलर महंगा होने का पता टीवी से चला। जनूबी पंजाब का जो किसान है, मेहनत करने वाला है, मुखलिस है, अगर इनको खुशहाल किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, अच्छा बीज और खाद बरवक़्त दिया जाए और सस्ता किया जाए। सिराजुल हक का मजीद कहना था कि नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में सिर्फ निशान का फर्क है। अब अवाम हकीकी तब्दीली चाहते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। पंजाब हुकूमत के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की लागत में 96 अरब रुपए का इजाफा। ठेकेदारों की इजाफी बोली से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम 332 से 429 अरब रुपए तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर 332 अरब रुपए का तखमीना लगाया था। प्रोजेक्ट के PC1 के मुताबिक 332 अरब रुपए की रकम मंजूर की गई थी। ताहम ज़राए ने बताया है कि बिड ज्यादा होने से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की लागत में 96 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कमेटी ने फी खानदान प्रीमियर रेट में 4700 रुपए का रेट मुकर्रर किया, जबकि हुकूमत ने PC1 में फी खानदान 3580 रुपए रेट लगाया था। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है फी फैमिली प्रीमियर रेट बढ़ाने से बिड और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की लागत में इजाफा हुआ। मियांवाली इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन है। असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक बाजवा के इलाका मूछ कच्चा में कार्रवाई। करोड़ों मालियती 2300 केनाल सरकारी रकबा काबजीन से वागुजार करवा लिया गया है। नवाही इलाका मूछ कच्चा में नजायज काबजीन अरसदराज से सरकारी रकबे पर काबिज थे। मुतलका रेवेन्यू स्टाफ और पुलिस नफरी के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ने सर्वे कराया, जिसके मुताबिक 2300 किनाल सरकारी रकबे पर नजायज कब्जा पाया गया। रकबे पर काबजीन ने गंदम की फसल भी काश्त की हुई थी। पुरअमन तौर पर कब्जा खत्म कराकर अराजी गिरदवार सर्कल मूछ के हवाले की गई। मुल्तान में सेहत दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ 150 लीटर मिलावटी दूध मौका पर तलब कर दिया गया। 5 मिल्क शॉप्स मालिकान को 58,000 के फाइन किए गए। मुल्तान में मिल्क शॉप्स की चेकिंग की गई। मिलावट साबित होने पर 150 लीटर मिलावटी दूध को मौका पर तलब कर दिया गया, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों की जानिब से 5 दुकानदारों को 58,000 रुपये के जुर्माने किए गए। टेस्ट के दौरान दूध में कुदरती ग़िज़ाइयत और गाढ़ेपन की कमी पाई गई। इसके अलावा हशरात की भरपार और स्टोरेज एरियाज में सफाई के नाक़िस इंतजाम पाए गए। सरकारी स्कूलों में मिनी नर्सरीज की चेकिंग का अमल कल से शुरू किया जाएगा। हर स्कूल में महकमा तालीम की जानिब से नर्सरीज बनाने के अहकाम जारी किए गए थे। डिप्टी एजुकेशन अफसरान अपने अपने स्कूल्स में बनाई गई नर्सरियों का जायजा लेंगे। नर्सरियों में 500 पौधे लगाने के अहकाम जारी किए गए थे। 25 मुख्तलिफ किस्म के गमले भी नर्सरियों में रखने की हिदायत जारी की गई थी। चेकिंग के दौरान नर्सरियां बेहतर ना होने पर स्कूल प्रिंसिपल को जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी है। निकाहनामे में दुल्हा दुल्हन और गवाहान कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने निकाहनामे में मुसलमान होने का सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दे दी है। निकाहनामे में दुल्हा दुल्हन गवाहान कादियानी ना होने का सर्टिफिकेट दें। सर्टिफिकेट दिए बगैर निकाह नहीं हो सकेगा। निकाह खां को इस हवाले से पाबंद किया गया है कि वो सर्टिफिकेट पर दस्तखत कराने के बाद ही निकाह पढ़ाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने यह असम्बली काबीना कमेटी के सामने रखने की मंजूरी दे दी है। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद ये बाकायदा कानून बना दिया जाएगा। महकमा बल्दियात ने रूल्स में तरमीम करने की समरी 1 साल की थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने फोर्ट मंदरों का दौरा किया। तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्ठा भी उनके हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मंदरों का दौरा किया और तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी को चेयर लिफ्ट और पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई स्कीम पर ब्रीफिंग दी गई। कामरान अली अफजल का कहना था कि फंड्स की कमी नहीं, फोर्ट मंदरों में तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। कबायली लोगों ने चीफ सेक्रेटरी को कमिश्नर के इकदाम बारे आगाह किया, जिस पर कामरान अली अफजल ने कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। लोधरा में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शुआब अली का एक्सिन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और एक्सिन बिल्डिंग की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। डीसी ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 की सुस्त रवि पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इजलास में मेंबर सूबाई असम्बली नज़ीर खान बलोच, रहनुमा PTI नवाब अमानुल्लाह खान, ताहिर खान मिलिसराई, जिला सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस कमेटी साउथ खुर्शीद समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कम्युनिटी डेवलपमेंट फेज 3, पायदार तरक्की, हदफ के हसूल का प्रोग्राम फेज 1, फेज 2, फेज 3 की स्कीमों का
जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत का मई के पहले हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मंसूबा, बल्दियाती इलेक्शन कराने का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि महकमा बल्दियात ने मई के पहले हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन कराने का तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। हदबंदियों के रूल्स तैयार किए जा रहे हैं। रोजे होने की वजह से अप्रैल में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। रोजों के फौरन बाद बल्दियाती इलेक्शन होंगे। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक डीसीज को हदबंदियां करने का लिख दिया गया है। नया गाजी खान डिस्ट्रिक्ट बार में खवातीन बार रूम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजमतुल इस्लाम गलज़ई का कहना है कि सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार अगले हफ्ते खवातीन बार रूम का इफ्तिताह करेंगे। बार रूम के क़याम से खवातीन वकला की मुश्किलात भी कम होंगी। एसोसिएशन डेरा गाजी खान ने इस दफ़ा कोशिश की है और उन्हीं की काविश से जो है सीएम साहब से हमने एक फ़ंड लिया और उस फंड को हमने यूटिलाइज़ किया है। तो यहाँ की जो लेडीज़ लॉयर्स थी उनकी तादाद तकरीबन 137 है, लेकिन उनके पास बार रूम नहीं था। तो हमने एक बहुत बड़ा हॉल उनके लिए अरेंज किया है, वो बनाया है। तो इसके अलावा सदर ऑफिस और सेक्रेटरी ऑफिस भी बनाया है। और इसके अलावा भी हमारी एक तहसील है कोट छुट्टा जो कि अदालतों से महरूम थी, तो वहाँ पर हमने अदालतों के क़याम की मंजूरी भी दिलवाई है। इसके अलावा वॉशरूम्स, जिस तरह आप जानते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर उनकी हालत ख़राब होती है, तकरीबन 17 के करीब हमने वॉशरूम्स बनाए हैं, न्यू चैम्बर्स दिए हैं। तो इंशाल्लाह जो है इस ब्लॉक का जो कि सुल्तान महमूद ब्लॉक है उसका इफ्तिताह सीएम साहब। मुल्तान मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में सजा प्लांट सिट्रिक मेल कंपटीशन मुकाबले में तलबा और तालिबात की जानिब से तैयार शुदा पकवान पेश किए गए। 70 स्टॉल्स पर 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ पकवान देखने वाली तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मज़ीद जान लेते हैं अली रियाज से। अली बताइए। बिल्कुल, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में प्लांट सेंट्रिक मील कंपटीशन जो इसका इनेकाद किया गया है, जो कि फूड साइंसेज के डिपार्टमेंट जो है इसको देख रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर 70 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ डिशेज़ हैं वो है। लेकिन ख़ास बात ये इस कॉम्पिटिशन की कि इसमें जो तलबा और तालिबात हैं उन्होंने ऐसी यूनिक डिशेज़ दी हैं जो कि हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करें, मेल न्यूट्रिशन को पूरा। तो जो स्टॉल्स हैं, अगर मेरा कैमरा से आपको दिखाएगा, यहाँ पर ये तमाम स्टॉल्स जो रंग बिरंगे लगे हुए हैं। ख़ास बात यह कि इनमें न सिर्फ यहाँ पर जो डिशेज़ वो मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर जो तालिबात ने कुछ इनोवेटिव काम किया है वो भी यहाँ पर डिश मौजूद है। पहले तालिबात से बाद में से पूछते हैं, ये बताएगा आपकी यहाँ पर यूनिक डिश कौन सी है जो आप लोगों ने बनाई है? हमारी जो यूनिक डिश है वो एनर्जी बॉल्स है। इसके अंदर ये हाई इन प्रोटीन है, इसके अंदर नट्स हैं, आलमंड्स है, वॉलनट है, और इसको हमने इस तरह से कैंडीज की शेप दी है क्योंकि बच्चे जो हैं वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए हमने उसको इस तरह की शेप दी है ताकि वो हाई प्रोटीन बेस्ड जो है वो फूड इनटेक करें और उसको इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और वो इसको इनटेक करें। तो यहाँ पर और स्टॉल्स जो यहाँ पर मौजूद उनसे पूछते हैं, आप बताइएगा आपके स्टॉल में क्या खास बात है? हमारे स्टॉल की खास बात यह है कि हमने एक फुल बैलेंस मील को रिप्रेजेंट किया है और हमने बच्चों पे खसूसी तौर पे गौर किया है, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके लिए सब्जियां या प्रोटीन लेना बहुत मुश्किल है। कुछ को अंडा नहीं पसंद, कुछ को जर्दी नहीं पसंद, तो हमने उसको फुल को शोकेस किया है। सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर ये जो खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जो तालिबात उनकी जानब से खाने बनाए गए हैं उसमें कुछ नए नए पकवान भी है, जिसमें इस बात को खास तौर पर मौज़े खातिर रखा गया किस तरह से जो ग़िज़ाई किल्लत है उसको पूरा किया जाए। आवाम की भी यहाँ पर तवज्जो मरकज़ बन रहा है और यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन का जो नताइज है वो भी सामने आएंगे। अली रियाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिका आमिर डोगर की वालदा के साले सवाब के लिए कौमी असम्बली की जामे मस्जिद में कुरान ख़ानी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा आफरीदी समेत दीगर ने शिरकत की है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिका आमिर डोगर की वालदा के साले सवाब के लिए कुरान ख़ानी हुई है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा आफरीदी समेत दीगर ने शिरकत की। सरकारी स्कूलों में कुरान पाक की तालीम लाजिम करार, कायद अकेडमी की जानिब से प्राइमरी सेक्शन के असातिज़ा की ट्रेनिंग की हिदायत जारी कर दी गई हैं। नाज़िरे की ट्रेनिंग 14 से 16 जनवरी तक जारी रहेगी। 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए फाइनेंशियल गाइडलाइन भी जारी की गई है। ट्रेनिंग लेने वाले असातिज़ा को रोज़ाना की बुनियाद पर 350 रुपये और दोपहर का खाना दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को 3 दिन के 12,000 रुपये दिए जाएंगे।
शहरी ओलिया में सजे रंगों के मेले को 10 रोज हो गए। ईदगाह पार्क मुल्तान में गुल दाऊदी की नुमाइश जारी है। मुख्तलिफ अकसाम के रंग बिरंगे महकते फूलों ने माहौल को मजीद दिलकश बना दिया। मुल्तान में गुल दाऊदी की 10 रोजा नुमाइश जारी है। खुश रंग फूलों ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया, जिन्हें देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ईदगाह पार्क में पहुँच गयी। नुमाइश में मुख्तलिफ अकसाम के 1600 गमले रखे गए हैं। नुमाइश माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, कलरफुल फूल इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छी है, ऐसी नुमाइश होनी चाहिए। 400 फैली सफेद, नीले, पीले, गुलाबी, नारंगी और दीगर रंगों के फूलों की बहार ने माहौल को चार चांद लगा दिए हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, सुबह से जिद कर रहे थे हमें पापा ले चलें, मैं ले आया हूँ। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुल्तान में और जगह में भी होनी चाहिए। नुमाइश में आए शहरी रंग बिरंगे फूलों के साथ तस्वीरें बनवाकर हसीन लम्हात को महफूज बना रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पाकिस्तानी फिल्मों में विलन का किरदार अदा करने वाले मारूफ अदाकार शफकत चीमा की मुल्तान रेक्स थिएटर में एंट्री हुई। रोहित से गुफ्तगू करते हुए मारूफ अदाकार शफकत चीमा का कहना था कि मुल्तानियों से मिलने वाली मोहब्बत नाकाबिले फरामोश है। उनका मजीद क्या कहना था, जान लेते हैं वसीम शेजान से। वसीम, बताइएगा क्या कहना है शफकत चीमा का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेक्स थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा मिरासी 007 जो है वो जारी है, जिसमें मारूफ विलन जो है वो शफकत चीमा भी परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे हमरा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्तान आए हैं, किस तरह की मोहब्बत जो है वो समेट रहे हैं? क्या बात है जी, दुनिया में सुखनवर तो हैं बहुत अच्छे। कहते हैं कि मुल्तान जैसा शहर कहीं नहीं मिला। क्या मोहब्बत दी है इस शहर वालों ने, क्या प्यार दिया है, मुझे हमेशा याद रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं कुछ भी नहीं था, जब शफकत चीमा का नाम भी नहीं था, आज ये शख्सियत मेरे साथ बलोच साहब बैठे हुए हैं, जवार बलोच साहब, एज ए प्रोड्यूसर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तो मैं उस वक्त एज एक्स्ट्रा काम करता था। तो मुझे इन्होंने इंतखाब किया अपनी फिल्म में एज ए विलन। फिल्म का नाम था वतन के रखवाले। वो मेरी दूसरी मूवी थी, पहली मेरी मूवी कुछ और थी। तो दूसरी फिल्म में मुझे इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल दिया। मेरे ख्याल से अगर जवार बलोच साहब मेरा इंतखाब ना करते तो आज शफकत चीमा ना होता। बलोच भी हमारे हमरा मौजूद होंगे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ड्रामे को फैमिली ड्रामे की तरफ लेकर जा रहे हैं, नए स्क्रिप्ट और नए जो लोग हैं मुतारिफ। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मेरा नाम लिया। शफकत चीमा साहब बहुत बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। शफकत चीमा साहब ने जिंदगी में बहुत से विलन आए हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, जो इन्होंने रिस्क लिए अपनी जान के ऊपर, जो इन्होंने अपने आप को रिस्क में डाला। आज शफकत चीमा का नाम पूरी दुनिया में है। मारूफ अदाकार हमारे साथ मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मेहनत जो है वही कामयाबी की कुंजी है, और नए आने वाले जो अदाकार है वो सख्त मेहनत करें ताकि वो भी। वसीम शेजान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कपल मैरिज में जलसे आम से खिताब कर रहे हैं। आइए आपके लिए चलते हैं। कायदीन जमात इस्लामी और मेरे इस शहर के वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इंजीनियर आतिफ इमरान की जमात इस्लामी में शमूलियत पर इस खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया है। और मैं बिरादर आतिफ इमरान को जमात इस्लामी में खुशामदीद कहता हूं। मेरे दफ्तर मंसूरा तशरीफ लाए थे और मेरे सामने उसने ऐलान किया कि मैं जज्बाती तौर पर नहीं, मुफादात के लिए नहीं, अपनी बकिया जिंदगी को इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम, इस्लामी इनक़िलाब और निज़ाम मुस्तफ़ा के खातिर जमात इस्लामी के हवाला करना चाहता हूं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनसे अल्लाह की दीन का काम और मखलूक खुदा की खिदमत का काम ले ले। और आज मैं जानता हूं कि मेरे सामने मुल्तान के
दाना बीना और जहांदीदा लोग जमा हैं। मेरे सामने मुल्तान के तालीम याफ्ता लोग जमा हैं, अल्लाह वाले लोग, आशिकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा जमा हैं। डॉक्टर इकबाल हाशमी साहब ने बताया कि मुल्तान एक गवर्नर का है, मुल्तान एक साबिक वज़ीर आज़म का है, लेकिन मेरा ईमान है कि जिस तरह ये मुल्तान माजी में औलिया का शहर था, आज भी ये अल्लाह वालों का शहर है, ये गुलामान मुस्तफ़ा का शहर है, ये किसी गवर्नर का और वज़ीर आला का नहीं है, ये आपका शहर है। आपकी वजह से इस शहर की रौनक है, आपकी वजह से यह शहर खूबसूरत है, आपकी वजह से यह शहर चलता है और आगे बढ़ता है। और इस लफ्ज़ को छोड़ दे कि ये मुल्तान प्लां गवर्नर, प्लां खान, प्लां उडेरा और प्लां जागीरदार का है, ये शहर मुल्तान के गरीब अवाम का है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से एक दिल की बात करूं। मेरे दिल की बात यही है कि मैं अपने लिए कामयाबी चाहता हूं इस दुनिया में भी, और कामयाबी चाहता हूं अपने लिए, अपने औलाद के लिए क़यामत में भी। और जिस तरह अपनी ज़ात के लिए कामयाबी चाहता हूं और अपने औलाद के लिए और अपने वालिदैन के लिए, उसी तरह आपके लिए चाहता हूं कि आपको भी कामयाबी का रास्ता बता दूं। और कामयाबी का रास्ता और कामयाबी का जो कारवान है, ये एक ही है, और वो ये कि अगर हम अल्लाह के बंदे बने, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और गुलाम बने। इसके अलावा आप सदर बन सकते हैं, वजीर बन सकते हैं, मिंबर बन सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी का रास्ता अल्लाह के बंदगी में है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। मेरे रब ने जब ये कायनात बनाया और जमीन को फर्श बनाया, आसमान को छत और सूरज और सितारों को रोशनी बख्शी, और इस कायनात में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कपल मैरिज में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। आप मुलाहिजा कर रहे थे। लोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।